بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواتین حضرات، ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کو فارن فنڈنگ کیس میں بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو فارن سے جو بھی پیسے آئے ہیں تو کسی بھی شخص کے متعلق جس نے وہ پیسے بھیجے ہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے وہ پیسے جو ہیں وہ کسی غیر قانونی وجہ سے آئے ہیں، وہ کسی جرم کی وجہ سے اس شخص کے پاس آئے تھے اور اس شخص نے پھر ان کو سینڈ کیے۔ اس لحاظ سے ہائی کورٹ نے ایک اور بھی آرڈر پاس کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو، وہ سابقہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، اس لحاظ سے انہیں ان کے شایع نشان جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ جی سپریم کورٹ کا دبنگ فیصلہ آ چکا ہے الیکشن کے حوالے سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو الیکشنز کو، پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کو 8 اکتوبر تک لے گیا تھا، سپریم کورٹ نے پہلے بھی فیصلہ دیا کہ اسمبلیاں جب سے ڈیزالو ہوئی ہیں تب سے لے کر 90 دن کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ ہونے ضروری ہیں۔ یہ ایک آئینی معاملہ ہے۔ تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ پہلے بھی ایک آرڈر اپنا دے چکی تھی، لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید سپریم کورٹ ان کے ساتھ مذاق کر رہی ہے اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی شاید کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے وہ کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے، تو انہوں نے اسے ہوا میں اڑا دیا۔ لیکن پھر سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور اس کے بعد پھر انہیں سرِ عام ملائن کرنا شروع کر دیا گیا، حکومت وقت نے اپنے جو مختلف اجلاس کرنے شروع کیے، ان اجلاسوں میں بھی باقاعدہ چیف جسٹس صاحب کا نام لے کر اور ان ججز کا نام لے کر جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں ان پر تنقید شروع کر دی گئی اور یہاں تک کہا گیا کہ ان سب کو جو ہے وہ استعفے دے دینے چاہیے۔ تو اس کے باوجود ہمارے ججز جو ہیں جی وہ ڈٹے رہے اور بالآخر انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور حق اور سچ کا فیصلہ تھا، آئینی فیصلہ تھا۔ تمام ماہرین پہلے سے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آئین کے خلاف کسی صورت نہیں جا سکتا، یہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ اس کے بعد جی الیکشن کمیشن نے پھر الیکشن پنجاب کے جو ہیں ان کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے اور 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے اور جو مختلف امیدوار ہیں انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں الیکشنز کی سرگرمیاں بھی شروع کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جہاں الیکشن کمیشن نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز کا اعلان کر دیا ہے، شیڈیول جاری کر دیا ہے، وہیں میاں صاحب کی ٹینشن جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ میاں صاحب آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پنجاب میں الیکشنز نہیں چاہ رہے، وہ کسی بھی صوبے میں الیکشنز نہیں چاہ رہے۔ وہ بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے، تب پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اب لیول پلینگ فیلڈ سے ان کی مراد اگر یہ ہے کہ ان کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، ایک جہاز پاکستان سے بھیجا جائے اور جو میاں صاحب کو لے کر پاکستان واپس آ جائے اور اس کے بعد ان کے گلے میں ہار ڈالے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ میاں صاحب آئیے اور الیکشن لڑیں اور اس کے بعد آپ جیتیں اور اس ملک کے چوتھی بارہویں وزیر اعظم آپ بن جائیں، اگر تو لیول پلینگ فیلڈ اس کا نام ہے تو پھر میاں صاحب مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا۔ اداروں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جی اس نے تو جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ان کے ساتھ ججز ہیں انہوں نے بارہا برملا کہا ہے کہ وہ آئینی کردار ادا کریں گے، کسی بھی حد تک جائیں گے پاکستان میں رول آف لا کی جو کنڈیشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے۔ میاں صاحب یہ چاہ رہے تھے جی کہ کسی بھی طور پر سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی جائے۔ اسی سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے جو اجلاس تھا جس میں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں موجود تھیں، زرداری صاحب بھی آن لنک تھے اور میاں صاحب بھی آن لنک تھے، تو اس میں میاں صاحب سب سے زیادہ
हर्जा सराई करने वाले थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और वो बार बार कह रहे थे कि आप लड़ जाएं, भिड़ जाएं उनके खिलाफ, उनका फैसला मानने से इनकार कर दें, बल्कि वहां पेश होने से ही इनकार कर दें। तो ज़राए का कहना है कि जरदारी साहब ने फिर मियाँ साहब से कहा कि मियाँ साहब आप थोड़ा ब्रेक पे पैर रखें, क्योंकि आप तो पहले से पाकिस्तान से बाहर हैं, ना आप असम्बली में हैं, ना आप पाकिस्तान में हैं, अदालतें आपको ढूंढ रही हैं। तो मियाँ साहब हमने पाकिस्तान में रहना है, हम तो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं जनाब, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह जो है ना वो मुहाजरा ही नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। हम हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करती है। हाँ, ये हो सकता है कि हम कुछ इक़दामात ऐसे करें कि किसी तरह से इलेक्शन से बचा जा सके। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मियाँ साहब की जो पॉलिसी है वो यही है कि हर सूरत में आप बस चढ़ाई कर दो। दूसरी तरफ जी मरियम बीबी हैं, मरियम बीबी की इंटेंशन जो है, उनकी भी टेंशन, वो टेंशन सेम अपने पापा जी वाली है। वो भी चाह रही हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो ना हो। उन्हें पता है कि इस वक्त अवाम का रद्द अमल क्या है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के पीछे बहुत से जजेज हैं। तो मरियम साहबा से बड़ा आजाना सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल है कि आपके पीछे भी बहुत सारे जजेज हुआ करते थे और शायद आज भी हैं। जस्टिस कयूम साहब से लेकर अल्लाह पाक उन्हें जन्नत दे, अब इस दुनिया में वो नहीं है। उसके बाद अरशद मलिक साहब, वो भी मरहूम है, अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत दे। तो इनके किरदार कैसे थे ये कोई दुनिया से ढकी छुपी बात नहीं है। और आज जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में भी किस तरह इदारे आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे कौन वाकिफ नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मरियम साहबा, तो इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब थे, मफरूर थे, वो वापस आते हैं और देखें जनाब कोई मसला नहीं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। इससे बड़ी रिलीफ क्या होगी कि आते ही उन्हें इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना लगा दिया गया। उसके बाद हमजा शहबाज साहब हैं, उन्हें अदालतें रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। सलमान शहबाज साहब हैं, उन्हें अदालतें रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। और ख़ुद जी बनफ़्स नफीस शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं, अब उनके ऊपर जितने केसेस थे, हर कोई समझ रहा था कि ओपन एंड शट केसेस हैं, इनके तो फैसले आए के आए, लेकिन कहाँ उन पर फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी, कहाँ वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लग गए जी। इतनी कोशिशों के बाद, पूरी तरह खंगालने के बाद भी इमरान खान पर एक भी करप्शन का केस आप साबित नहीं कर सके। और वो जो आप कहते थे ना कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो है ये सब के सब करप्ट लोग हैं, आप इमरान खान तो क्या, इमरान खान के करीब लोगों पर भी, किसी एक पर भी कोई करप्शन का एक केस भी आप साबित नहीं कर सके। आप शहबाज गिल को उठा के ले गए। शहबाज गिल बेचारे को आपने जिस तरह, जितना तशद्दुद उस पर हो सकता था किया गया। और उसके बाद आज़म स्वाति साहब और फिर फवाद चौधरी साहब, ये बड़े बड़े नाम हैं। इनके अलावा भी जितनी भी पाकिस्तान की पीटीआई की जो बड़ी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, उन सब पर मुकदमात हैं, लेकिन किसी पर भी करप्शन का मुकदमा नहीं है। किसी पर 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा है, किसी पर नक्शे अमन का मुकदमा है, किसी पर जनाब दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया कि जनाब पुलिस को कार्रवाई करने से रोका गया, जत्थे लेके आ गए, जत्थे लेके चले गए। तो मुकदमात जो हैं ये सारे के सारे सियासी बने हुए हैं। करप्शन का, लूट मार का जिस तरह के मुकदमात आप पर बने हुए हैं, इस तरह का कोई एक मुकदमा भी इमरान खान पर नहीं है। नाज़रीन, थोड़ा सा अहाता करते हैं कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म के इदारे हैं, उनकी पावर्स जो है वो कितनी हैं और कौन किसको बुला सकता है। आप जानते हैं कि एक आम आदमी जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस दायर करता है तो वो लोअर जुडिशरी से शुरू होता है सिलसिला। सबसे पहले नीचे जाके केस जो है वो दायर किया जाता है। उसके बाद सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से फिर आखिरी स्टेज होती है जी सुप्रीम कोर्ट तक वो केस पहुंचता है।
खुदा न खास्ता अगर किसी को फांसी की सज़ा भी हुई है लोअर कोर्ट से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसका जांच पड़ताल के बाद मज़ीद फ़ैसला देती है कि उसकी सज़ाए मौत बरकरार रहनी है या उसको उन्होंने ख़त्म कर देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी शख्स की सज़ा को बरकरार रखती है तो फिर उसके बाद आखिरी अथॉरिटी जो है वो सदर पाकिस्तान की होती है। सदर पाकिस्तान भी अगर उसकी अपील को खारिज कर देते हैं तो फिर उस शख्स को सिर्फ खुदा की ज़ात ही बचा सकती है। किसी शख्स को ख़वातीन हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास से बहुत से इख्तियारात हैं, वो बहुत से लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, वो मुफादे आमा के सिलसिले में उनके पास से बहुत से फ़ंड होते हैं, सवाबदीदी फ़ंड्स होते हैं, वो उन फ़ंड्स को इस्तेमाल करते हुए आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास से बहुत से इख्तियारात होते हैं, उन इख्तियारात को वो इस्तेमाल करते हुए बहुत से मुफादे आमा के काम करते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो किसी भी मैटर के सिलसिले में, किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने ऑफिस में नहीं बुला सकते। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, सदर पाकिस्तान के पास बहुत से इख्तियारात हैं, इतना बड़ा इख्तियार कि अगर किसी शख्स को सज़ाए मौत हो जाए तो वो अपनी आखिरी अपील के लिए सदर पाकिस्तान को पुकारता है। तो ख़वातीन हज़रात, सदर पाकिस्तान के पास से बहुत से इख्तियारात होते हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने ऑफिस में तलब नहीं कर सकते आईनी तौर पर। ये एक क्लियर कट बात है। इसके बाद आ जाइए जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ताकतवर इदारा जो हमारी पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज के सरबराह सब इदारों से जनाब ज़्यादा ताकतवर सरबराह हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। किसी भी मामले में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने ऑफिस में नहीं बुला सकते। तो ये पावर्स हैं जी मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं ये इंसाफ का एक मंबा कहलाते हैं। जितने भी केसेस लोअर जुडिशरी से ऊपर आते हैं तो आखिर में वो चीफ जस्टिस के पास आते हैं। चीफ जस्टिस साहब मुख्तलिफ बेंचेस जो हैं वो कंडक्ट करते हैं, मुख्तलिफ बेंचेस जो हैं वो बनाते हैं, वो देखते हैं कि कौन से जज जो हैं, कौन से जस्टिस जो हैं वो कौन सा केस सुनेंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर ज़रूरत पड़े तो वज़ीर आज़म को तलब कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़रूरत पड़े तो सदर पाकिस्तान को तलब कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आइन की सरबुलंदी के लिए अगर कोई मैटर हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी तलब कर सकती है। ये पावर्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। तो जी आज क्या हुआ है कि काबीना में एक रेजोल्यूशन पास की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी सूरत भी नहीं माना जाएगा। ख़वातीन हज़रात, PMLN के जो लोग हैं, जो लीडरशिप है PMLN की, मियाँ साहब जो हैं वो तो बिलखसूस वो तो कश्तियाँ जला चुके हैं, उन्हें पता है कि उनका तो फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो चुका। बाकी एक कोशिशें उनकी जारी हैं कि शायद डूबते हुए को, जैसे कहते हैं कि तिनके का सहारा, कि कोई सहारा किसी ताकतवर बंदे का हाथ उन्हें फिर से मिल जाए और शायद उनकी डूबती हुई नैया जो है वो पार लग जाए। अदरवाइज ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। इसीलिए अब उनकी कोशिश है कि शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर दें। लेकिन याद रखिएगा ख़वातीन हज़रात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज तक रद्द नहीं हो सका पाकिस्तान की तारीख में। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस पर अमल हुआ। जो फैसला अब दिया गया है, आईनी माहिरीन का ख्याल है कि इस फैसले पर भी हर सूरत में अमल होगा। तो अब देखना यह है कि हक की जंग लड़ने वाले जो हैं वो कामयाब होते हैं या बातिल परस्त जो हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फतह आखिर में हक ही की होनी है। आज के व्लॉग से इतना ही। अगली नशिस्त तक के लिए ज़ुबैर मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।